Hello everyone, can you hear me? Can you see me? Please open your videos and let me know. नमस्ते नमस्ते प्रणाम everybody, नमस्ते, वेलकम, राधे राधे everybody, कैसे हैं आप सब? राधे राधे सर। If you can hear me well, if you can see me, just type in Radhe Radhe in the chat box. If you are happy to see me, type in Radhe Radhe in the chat box. वेलकम everybody. ठीक, चलिए एस्ट्रोलॉजी लर्निंग को लेकर आप लोग अभी कहाँ पे हो करेंटली? प्लीज लेट मी नो what you are doing. Are you like learning from the app, you're looking at the recordings, or you have started practicing? Yeah, you're preparing for golden certificate. क्या चालू है आप लोगों का? प्लीज लेट मी नो. और ऐसा कोई है जो मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिल रहा है, यू लेट मी नो ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज दिस सेशन इज ओपन फॉर एवरीवन. ओके, ओके, लेट मी. How many of you are good with understanding planets? Type with me in the chat box. Planets overall समझ में आ जाता है कि planets क्या है. Type with me in the chat box. Okay. Diksha ji is okay with understanding planets. What about others? Type in me in the chat box, okay? मेहनत करो आप before we get started with the. Okay, Sanskar understands it. Alka also understands it. Okay, very good. Kajal ji also understands it. Okay, ठीक है. Right. Uh, how many of you are okay with understanding houses also? Maybe not an expert, but you are like, okay, you understand the first house, sixth house, fifth house, 10th house, एक idea तो आ जाता है. Okay, very good. 70% you understand it. Nice, very good. What about Rashis? Okay, Sanskar understands Rashis also, very good. Okay, okay. Excellent, excellent, very good. Dashas. How many of you understand dashas? No. Okay. Alkaji is yet to get that. Uh, Kajalji is also yet to understand it. Amitaji understands dashas also. Okay, very good. ठीक है. ये चार चीजें अगर आप लोगों को आती है, ठीक है, you are kind of ready to start practicing and guiding people and helping people. Okay, ये चार चीजें अगर आप लोगों को समझती है, ठीक है. What about transits? How many of you understand transits? How many of you do not understand transits at all? Transit मतलब गोचर. 50-50. Okay, Kajal ji is yet to get there. Sanskar ji is understand 50-50. Okay. Amita ji understands transit also. Okay. तो जिन्होंने इन पांचों सवालों को हाँ आंसर किया है, यू आर ऑलमोस्ट रेडी, ओके, टू स्टार्ट हेल्पिंग एंड गाइडिंग पीपल. ठीक है. और जिन्होंने इन चार पांच सवालों को, मतलब 50-50 है या फिर
और समझना बाकी है जो भी है, then you should keep working on it. These could be like 5 steps, minimum steps, okay, required. 5 minimum steps required to become a very good astrologer. ठीक है. Today's topic is all about practical astrology versus fear-based astrology. Okay, ये आज का टॉपिक है and we can consider it as a high level topic only. ठीक है, भले उसका टॉपिक टाइटल इज वेरी सिंपल बट इट्स एन हाई लेवल टॉपिक only. ठीक है, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी वर्सेस फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी. आप में से कितने लोगों को in very near future you want to start guiding people? Typing me in the chat box. In the very future, near future, you want to start guiding people. Maybe you want to start charging a fee for it also. Okay, type in me in the chat box. Very good. Excellent. So ये टॉपिक आप लोगों के लिए और जिनको भी हेल्प करना है ओवरऑल, ठीक है, सब लोगों के लिए इट्स वेरी गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज ये टॉपिक डिसाइड करेगा आप कौन से टाइप के गाइड बनते हो. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गाइड्स. ओके, वन जो आपको पूरी तरह से डरा कर छोड़ेंगे, ठीक है, एंड सेकंड जिनको मिलने से बहुत अच्छा लगता है, जिनको मिलने से एक होप आती है, एक मोटिवेशन मिलता है. और कोई भी चीज है, प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में है, सबके चार्ट में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव दिखेगा, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव दिखेगा. लेकिन 2 टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं. एक टाइप होता है जो ज्यादा करके नेगेटिव टाइप के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और एक टाइप होता है जो ज्यादा करके पॉजिटिव टाइप के ऊपर ज्यादा फोकस करता है. ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है. ऑलराइट, so let us talk about both of these things, and I want to just prepare you and prepare your mindset, kind of to make you ready, okay, to start helping people and guiding people and all of that. All right. आप में से कितने लोगों ने कोई कंसल्टेशन लिया है जहां पे यू डिड नॉट फील एनी मोटिवेशन? ऐसा हुआ है कभी? आप में से कितने लोगों ने एस्ट्रोलॉजर का कंसल्टेशन लिया हुआ है, मतलब एज अ client? Have you gone to an astrologer and taken a consultation? Let me know. Yes? Okay. Right. Very good. So try to remember that kind of a consultation कि exactly क्या feelings आपके अंदर पैदा हुई थी. Try to remember that consultation. ठीक है, was it fear or was it motivation? Was it ready to change a few things or was it like अरे यार पूरा लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है? ठीक है, so there are 2 types of experiences you also can give your client. As an astrologer, there are 2 types of experiences you can give your client. अभी ना, there are few types of astrologers or guides who will try to use fear based astrology. और fear based astrology यूज करने के सबसे बड़ा फायदा, पहला फायदा, कुछ लोगों को पसंद आता है, एक अलग टाइप की खुशी महसूस होती है. ठीक है, अरे डर गया डर गया ये डर गया. आप लोगों को याद है बचपन में हम कभी कभी फ्रेंड्स मिलकर वी ट्राई टू अपने दोस्तों को डराने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ तो प्रैंक करने की कोशिश करते हैं या वट एवर इट इज, राइट, और मजा आता है, राइट. So there are a few people who like it, okay, and Dr. Madhu doesn't like it. Very good, okay, but there are few people, okay. तो आप पूछोगे कि सर ऐसे डराते ही क्यों है कुछ लोग? अरे वो बिहेवियर पैटर्न है,
अंडरस्टूड? तो उनको पसंद आता है डराना। दूसरा एक फायदा है डराने का, और सामने वाला अगर डर गया तो दूसरा फायदा होता है, क्या मालूम? डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। यस और नो? कि भाई अरे, अरे इतना बुरा हो रहा है मेरे लाइफ में, अभी आप ही कुछ हल निकालो, आप ही मेरे माए बाप हो, आप ही मेरे गुरु हो। ये सुनने को तो अच्छा लगता है उन लोगों को। और एक डिपेंडेंसी भी क्रिएट हो जाती है। डिपेंडेंसी क्रिएट होना मतलब क्या? फ्यूचर बिजनेस, कंटिन्यूअस बिजनेस, रिपीटेड बिजनेस, राइट? So that is another way astrologers, you that another reason why astrologers use a fear-based uh, guidance techniques. अब ये फियर पैदा करने के इजीएस्ट तरीके क्या है मालूम है? सबसे पहले तो 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं, उनको एकदम बदनाम कर दो। कौन से 3 प्लैनेट है? डू यू नो? इफ यू नो यू कैन अनम्यूट एंड से। Saturn, Rahu, Ketu, करेक्ट। and सैटर्न, Saturn, Rahu, and Mangal. केतु, है ना? कुछ भी बुरा हो रहा है जिंदगी में, पहले इनका नाम बाहर निकालो, राइट? ये तो राहु ने वाट लगा दी, ये तो शनि के कार्मिक सारा आप भुगत रहे हो, राइट? और आप अगर गूगल पे इनकी इमेजेस ढूंढोगे, सर्च करोगे, हे भगवान, मतलब उन जिस हिसाब से उनका अवतार और इमेज बनाया गया, वो दैट इटसेल्फ इज आल्सो वेरी डरावना। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? राइट? तो ये सबसे पहला टूल बन जाता है डराने को, राहु केतु सैटर्न। ठीक है? और ऊपर से सैटर्न अगर वक्री हो गया तो मतलब और ही चांस मिल गया और ज्यादा डराने के लिए। ओके, सो दैट इज वन टूल दैट इज यूज्ड टू डराने के लिए आपको। फिर there are other tools also, a lot of tools, malefic, benefic, niche, right? That is another way that astrologers can put in fear inside you। ठीक, कोई प्लैनेट नीच का है, ठीक है ना? आप क्या ही कर सकते हो? आप कोई प्लैनेट को उठा के तो दूसरी जगह रख नहीं सकते हो, राइट? और क्रॉस क्वेश्चन करने का फिर हिम्मत अपने अंदर नहीं रहता, क्योंकि हम ऑलरेडी डरे हुए रहते हैं। क्या होगा अगर आपने किसी डराने वाले एस्ट्रोलॉजर को क्रॉस क्वेश्चन कर दिया? तो क्या बोलेगा? तो वो क्या बोलेगा? व्हाट डू यू थिंक? फॉर एग्जाम्पल, वो एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोल दिया आपका गुरु तो नीच का है, बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना? तो आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, गुरु नीच मतलब क्या, उसका रीजन क्या है? गुरु ये राशि में है तो नीच हो गया तो प्रॉब्लम हो गया, उसका रीजन क्या, उसका लॉजिक बताओ। चलो, अगर आपने ऐसा क्रॉस क्वेश्चन कर दिया तो क्या बोलेगा सामने वाला जेनेरिक एस्ट्रोलॉजर? यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? हमें तो आप म्यूटेड हो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तो शत्रु राशि में हो गए तो नीच नीच के हो जाएंगे। 7, दिस इज 7। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन आपने अगर ये क्रॉस क्वेश्चन कर दिया एस्ट्रोलॉजर को कि नीच का हो गया तो क्या हो गया, लॉजिक समझाओ, तो क्या बोलेगा लॉजिक एस्ट्रोलॉजर? नहीं बताएगा वो, और डराएगा कि आपको पहले ही कुछ मालूम नहीं, इसलिए मुझे ऐसे पूछ रहे। वो प्लेनेट फिर बैड रिजल्ट देगा ये हाँ, हाँ संस्कार, वो प्लेनेट फिर बैड रिजल्ट देगा, ऐसा डरा सकते हैं। करेगा और डराएगा। और
कभी कभी कुछ एस्ट्रोलॉजर एकदम ईगो पे भी ले लेंगे। This may happen. आप कौन होते हो मुझे पूछने वाले, है ना, ये अपनी परंपरा है, ये बड़ा पुराना नॉलेज है, आपने कभी पढ़ा भी है, वेद पुराण को आपने हाथ में भी लिया है, ये वो करके करके आपको चुप करा दे। करेक्ट। आप कौन होते हो लॉजिक पूछने वाले, राइट? सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स टू हैंडल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, and so that is another issue that can come along with fear based astrology. ठीक है, फिर रेमेडीज दी जाती है, राइट? कुछ रेमेडीज सही होती है, कुछ रेमेडीज तो एकदम अतरंगी हो जाती है, राइट? वियर्ड वियर्ड रेमेडीज भी आ जाती है कभी कभी। आपने सुनी है कोई वियर्ड रेमेडी? और अपने इंडिया में रेमेडीज पे इतनी श्रद्धा है ना, मैं क्या बताऊं। ठीक है। मतलब इंडिया ही मंगल को ऐसा भी एक देश हो सकता है जिसमें जहां पे इतनी श्रद्धा है ना ऐसी ऐसी रेमेडीज के ऊपर, राइट? वही रेमेडी आप जाओ और किसी अमेरिकन को बताओ या फिर किसी लंदन में रहने वाले को वही रेमेडी आप बताओ और देखो क्या बोलेगा वो। ठीक है, लेकिन इंडिया में जैसे ही आप लैंड करते हो, इंडिया की सीमाएं जैसे ही लांघ कर आप अंदर आते हो, ऐसी ऐसी रेमेडीज का एक्सेप्टेंस मिलेगा, देखने को मिलेगा आपको, और करने की इच्छा भी आपको मिल जाएगी कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, आपने सुनी है कोई रेमेडी ऐसी? कौन सी है? सर मंगल दोष के लिए पेड़ से शादी कराते हैं। हाँ, वो एक है रेमेडी, और हाँ। एकदम अतरंगी वाली। फिर फिर शराब शराब भी भैरवनाथ को शराब चढ़ाते हैं। ठीक है, और तो गुरुजी, शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चारकोल का फेस वॉश यूज करो, चारकोल पाउडर से ब्रश करो, ये भी सुना है मैंने। ओके, चलो ठीक है, थोड़ा सा उसमें लॉजिक तो हम बोल ही सकते हैं कि भाई मतलब चारकोल, एयर एलिमेंट वगैरह उसमें, चलो। आज ही मैं एक एड देख रहा था, पीपल हैव स्टार्टेड टीचिंग नरसिम्हा समथिंग। एनीबडी हैज हर्ड अबाउट इट? आई डोंट नो, कुछ नरसिम्हा विद्या या समथिंग लाइक दैट, अभी अभी तो ट्रेंड ही बन गया है, बगलामुखी साधना, नरसिम्हा सिद्धि, ये वो, राइट? करते 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 आई डोंट नो, शायद ना 33 करोड़ कोर्सेस निकलेंगे अभी। ठीक है, जितने देवी देवता है उतने कोर्सेस, अलग 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 टाइप के, लेकिन एक भी कोर्स ऐसा नहीं निकलेगा जहाँ पे दे विल कनेक्ट एवरीथिंग विद बिहेवियर्स एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, लेकिन ये इंडिया में चल भी रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपना माइंडसेट भी वैसा है। ठीक है, सो देयर इज अ लिटिल बिट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर एक्सेप्टेंस है इसलिए तो ये सारी चीजें चल रही है। अंडरस्टूड? चलो, एनी विच वेज, राइट? अल्टीमेटली एम क्या होता है ये फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का? अल्टीमेट एम इज कांस्टेंट एंजाइटी बिठाना, किसी भी व्यक्ति के अंदर एक कांस्टेंट एंजाइटी बिठाना। ठीक है, कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, एक बिजनेसमैन है, और वो क्लियर कट मुझे बोले, ब्रांडिंग में काम करते हो, वो क्लियर कट मुझे बोले, क्या बोले मालूम है? अरे सुधीर, मुझे ये एस्ट्रोलॉजी में पढ़ना ही नहीं है, और क्या बुरा है क्या अच्छा है मुझे जानना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा बिलीफ नहीं है, बिलीफ है, लेकिन मुझे मालूम नहीं तुम क्या बोलोगे, और जो भी तुम बोलोगे वो मेरे मन में बैठ जाएगा। ये सर राइट? और ऐसे लोग आपको काफी सारे मिलेंगे, और ये लोग क्यों ऐसे बने हैं मालूम है? ऐसा नहीं कि उनका बिलीफ नहीं है,
लेकिन बिना किसी को मिले ऑलरेडी डर बैठा हुआ है कि एस्ट्रोलॉजर मतलब ये हमें डराएगा, एस्ट्रोलॉजर मतलब ये हमें कोई तो एंजाइटी देगा। यही अपना मिशन है, इसी बिलीफ को अपने को तोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी को अपने को गाइडेंस की तरफ लेकर जाना है, ना कि मेकिंग इट फियर बेस्ड, राइट। और इसलिए ट्रेडिशनली एस्ट्रोलॉजी को 8th हाउस से देखा जाता है, राइट, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस इज हाउस ऑफ फियर। हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दैट, यस और नो, राइट। लेकिन हमें वहां से एस्ट्रोलॉजी को उठाकर वी हैव टू पुट इट इन द 9th हाउस, बस एक हाउस बाजू में रखना है हमें उसको, right? So there are two kinds of astrology. One is 8th house astrology and one is 9th house astrology. And our Salsa method of astrology completely comes under the 9th house kind of astrology. Right? How many of you understand the difference between 8th house and 9th house? सर Yes. फियर से होप की तरफ। Correct. 8th house is fear, 9th house is guidance. Correct? Right. 8th house is moksha, 9th house is dharma. Yes or no? That is the primary thing that we have to do as a community all together. Okay, that is the primary thing we have to do. वो सारी चीजें हमें हटानी है। राहु ने सब बर्बाद कर दिया, केतु ने सब बर्बाद कर दिया, हे भगवान, राइट। एंड शनि है तो अभी तो बुराई टाइम चल रहा है, मेरा शनि का टाइम चल रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। सब बकवास है वो, right? Those who have learned Salsa astrology a little bit, you know already. So what is practical astrology? How can we define practical astrology? बिहेवियरल बेस्ड रेमेडीज। Correct. So 3-4 चीजें हम बोल सकते हैं, just to categorize it into practical and guidance based astrology. Point number 1, ऐसी एस्ट्रोलॉजी जिसमें टाइमिंग का अवेयरनेस हम सबको दे रहे हैं, राइट। और ये टाइमिंग का अवेयरनेस पाने के लिए ही वी हैव क्रिएटेड द सालसा कॉस्मिक टाइम गाइड ऐप, राइट। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव द ऐप? यूजिंग द ऐप, टाइप इन यूज इन द चैट बॉक्स. How many of you are not using the app? Type in not using in the chat box. Okay, I just want to know how many of you are using it, how many of you are not using it. If those who are not using it, I'll immediately send you a link right away. On Android, you can download it. सिर्फ टाइमिंग आपको ट्रैक करना है तो इट इज फ्री टू यूज ऑल्सो, ठीक है। So happy to know many of you are using it. Some of you are not using it. Click on the link, you can download it. Just to track your timing, it is free to use. Okay, don't worry about it. Okay. If you want further guidance, it is just 199 per month. Okay. And by the way, within a couple of days now, inside that app itself, you will get all the chart data also. Okay, for every profile, you will see the Lagna chart, you will see the Salsa chart, you will see the mode of planets also, and you will also see the transit chart,
and you will also see the entire dasha sequence also for every profile inside that app itself. Okay. Right. So those who are not using it, please start using it. Sahasa Cosmic Time Guide app. So yeah, coming back to practical astrology, पहला टाइमिंग अवेयरनेस देना जरूरी है क्लाइंट को. Okay, कि what kind of timing you are going through, right? So that is one, part of practical astrology, positive astrology. Second, जिसको हम बोल सकते हैं कि it's a part of practical astrology, is behaviors. जहां पे while doing the consultation or while talking to your client or while talking to anybody you are guiding, you are talking mainly of behavior. Okay? You are talking mainly of behavior. ठीक है? You are not talking like आपका शनि वीक है तो प्रॉब्लम होगा, राइट? सामने वाला कुछ नहीं समझ रहा है. शनि वीक है मतलब क्या, राइट? ये समझाना बहुत जरूरी है. या जुपिटर वीक है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने वाली है. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग. यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि जुपिटर एक्चुअली वीक है. सबसे पहले तो जरूरी है चेक करना और क्रॉस चेक करना उनकी एक्चुअल लाइफ से कि सही में जुपिटर वीक है क्या, राइट? यू हैव टू क्रॉस चेक दैट. और उनके बर्ताव में, उनके बातों में, उनके पूरे बॉडी में you will understand Jupiter weak है कि strong है कि कैसा है. You will immediately understand if you really know the planets. Right? खैर, the session is not about that कि भाई किसी की body को देख के how can you understand whether Mars is strong or not or Jupiter is strong or not. You can do that through experience or maybe I'll take that topic also sometime. But पहले सामने वाले को ये पूछना जरूरी है और समझना जरूरी है कि सही में उनका कोई प्लैनेट वीक है या स्ट्रांग है. और अगर वीक है तो उनको समझाना जरूरी है कि एक्चुअल उसका रियल लाइफ में मीनिंग क्या है. तो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का रियल मीनिंग क्या है? यू आर कनेक्टिंग इट विथ योर रियल लाइफ. हवा में बातें अगर हो रही है तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी. सिर्फ हवा में बातें अगर हो रही है तो इट इज ऑल, क्या बोलेंगे, राइट, फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी. एज एन एस्ट्रोलॉजर यू हैव टू आस्क योर क्लाइंट ये रिलेट हो रहा है ना आपको कि नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा तो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. ये बहुत जरूरी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मोड ऑफ प्लैनेट में दिख गया कि किसी का सन नेगेटिव है. आपके कंसल्टेशन में यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट कि यू हैव इश्यूज विथ योर फादर और आपको विजिबिलिटी नहीं मिलती है, योर सन इज वीक, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू एंड ये प्रॉब्लम होगा जिंदगी में. वो यू कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग दैट. आपको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, हो गया. दैट इज फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी. और मैंने ये बोल दिया ना, आप में से कुछ लोगों ने सोचना चालू कर दिया यस और नो, मेरा सन स्ट्रांग है कि नहीं है. अच्छा सन वीक होता है तो अच्छा हार्ट अटैक होता है. यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट इट? टाइप इन मी इन द चैट बॉक्स. मैंने जस्ट बोल दिया एंड मेनी ऑफ यू स्टार्टेड थिंकिंग अरे सन वीक मतलब ये होता है क्या, अच्छा. दैट इज द वर्स्ट थिंग एन एस्ट्रोलॉजर कैन डू. आपको सामने वाले को डराए बगैर यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग. व्हाट डू यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग? सन रिलेटेड क्वेरीज यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग. कि भाई आपके कांटेक्ट में कितने लोग हैं, व्हाट, हाउ मच स्ट्रॉन्ग अ नेटवर्क यू हैव,
राइट, दैट इज वन इंडिकेशन, राइट। सन स्ट्रॉन्गर, वीक है, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स है क्या आपके, और आर यू योरसेल्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड और नॉट, राइट। न्यूज कितना देखते हो, ये सारी चीजें जरूरी है। पहले समझो, अपने मोड ऑफ प्लैनेट में दिख गया तो आपने बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू रिकन्फर्म इट। Is everybody understanding this? This is one very important step if you want to move from 8th house astrology to 9th house astrology. Okay, if you're understanding this, type in Radhe Radhe, R in the chat box. Okay, very important, बहुत जरूरी है। Okay. So that is another thing, which is a, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि differentiation between fear based versus practical. So you have to cross question, you have to really understand the client, and then you can start talking about it. और एक फर्क, fear based versus practical based, रेमेडीज में बहुत बड़ा फर्क रहता है। यस और नो, राइट। द काइंड ऑफ रेमेडीज दैट आर गिवन, राइट, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली कंसल्टेशन हुआ, जहां पे उन्होंने ऑलरेडी किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लेके रखा हुआ था, और उनके लाइफ में एक कोर्ट केस चालू था, और उनको अपने वाइफ के अगेंस्ट ही कोर्ट केस चालू था। तो उनको रेमेडी क्या दिया गया था मालूम है? अपने वाइफ के फोटो का प्रिंट आउट, ठीक है, फिर उसके ऊपर रोज वो पीला कलर का, वो ये बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, छोटा छोटा दाना रहता है ना, वो सरसों या समथिंग लाइक दैट, राइट, जो भी है, राइट, वो रोज उसके ऊपर डालने का। ठीक है, फिर उसके ऊपर ये क्लाइंट मुझे बोल रहा था, फिर अबीर, राइट, वो ब्लैक कलर का जो ये रहता है, राइट, वो डालने का, राइट, फिर उसमें स्पिट स्पिट करने का, ठीक है, फिर उसको फोल्ड करने का, फोल्ड करने का भी एक तरीका, राइट, एग्जैक्ट तरीका, फोल्ड करने का, और फिर जाने का, एक ना सुनसान जगह पे जाने का, राइट, और उसको एक स्पेसिफिक तरीके से कुछ चैंट करके जला देंगे। यार वीनस 6th हाउस में था क्या उस पर्सन का? तो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि ये जो आप, जिसके खिलाफ आप कोर्ट केस लड़ रहे हो, क्या उसको आप हेट नहीं करते हो क्या? अभी भी प्यार है दिल में? वो बोला कि नहीं, अरे वो प्यार व्यार तो दूर की बात है, मतलब ये तो मेरे अभी जिंदगी की बड़ी मुसीबत बनी हुई है, ये पूरी कोर्ट केस और ये पूरा सिचुएशन और ये पर्सन ऑल्सो, आई हेट दिस पर्सन अ लॉट। अगर आप ऑलरेडी हेट करते हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट केस चालू है, अभी भी आपके दिल में अगर प्यार है इस व्यक्ति के खिलाफ, तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि ये रिचुअल से उस व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये रिचुअल से एक चीज जरूर होगी, आपके अंदर आप खुद को प्रोग्राम कर रहे हो उस व्यक्ति को हेट करने के लिए, बस, और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी करके वो सामने वाले व्यक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ने में।
अगर आप ऑलरेडी हेट करते हो तो इट इज नॉट नेसेसरी टू डू दैट रिचुअल. तो हर एक रिचुअल के पीछे का ना मकसद और उसके पीछे का लॉजिक और एक्चुअली वो रिचुअल से क्या हो रहा है, राइट. तो बेसिकली वो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया उनको, टू स्पिट ऑन द फोटो, कि भाई इस व्यक्ति को तुम हेट करना सीखो सबसे पहले अगर कोर्ट केस जीतना है तो, राइट. दैट इज व्हाट दैट रिचुअल वाज डूइंग टू दिस पर्सन. Am I making sense to everybody? Type in MS in the chat box if you think I am making sense. Right. तो इससे अच्छा इजीएस्ट रेमेडी क्या था? अरे भाई जाओ सामने सामने बात करो, राइट. इतना बड़ा पहाड़ थोड़ी ना टूटने वाला है बात करेंगे तो, राइट. वकीलों को साथ में लेके बात करो, राइट. सो ये फर्क होता है फियर बेस्ड. और वो बेचारा, वो उनको बोला गया था 55 days यू हैव टू डू दैट रोज, 55 days. और अगर एक भी दिन मिस हो गया तो यू स्टार्ट अगेन, राइट. और वापस स्टार्ट करने के लिए सामग्री मैं भेजूंगा, राइट. दैट इज व्हाट दिस एस्ट्रोलॉजर हैड टोल्ड हिम. वापस अगर शुरुआत करना है तो सामग्री मैं भेजूंगा, उसका 5,001 रुपए या जो भी है, यू हैव टू सेंड इट टू मी अगेन. एंड जिनको दशाज का नॉलेज है अभी, डू यू थिंक कंटिन्यूअसली 55 days कोई भी एक चीज करना इज दैट इजी? दशाज चेंज होने वाली है, कोई ना कोई चीज बीच में आने वाली है, या फिर आपको कुछ ना कुछ और करना जरूरी पड़ने वाला है, कहीं ना कहीं आपको अर्जेंटली जाने पड़ने वाला है. इट इज नॉट पॉसिबल. तो ये माया जाल कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने, कुछ गुरुओं ने बना के रखा हुआ है, राइट, ऑफ द फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी. कि उनको डर लगता है कि ये बंदा एक बार मेरे से रेमेडीज ले ले, वापस आएगा नहीं मेरे पास. उनको डर लगता है. ओके, बट लेट मी टेल यू द ट्रुथ. ओके, लेट मी टेल यू द ट्रुथ. आज अभी टाइम ऐसा आया हुआ है, पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोटिवेशन. पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट पॉजिटिव पीपल, ठीक है. और आप अगर उनको मोटिवेट करोगे, उनको पॉजिटिवली चीजों को समझाओगे, तो दे विल कम बैक टू यू. ओके, दे विल कम बैक टू यू एज क्लाइंट्स ऑल्सो to find that motivation from you. Okay, trust me on this. मेरे पर्सनल करियर से, मेरे पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है. दे विल कम टू यू. ओके, सो जरूरी नहीं है कि डर से ही बिजनेस हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है. और एक चीज बताता हूं, ठीक है. 9th हाउस के सामने 3rd हाउस है. 3rd हाउस इज ऑल अबाउट रीचिंग आउट टू पीपल, मार्केटिंग. अगर आप 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी करोगे तो ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा. अगर आप 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी, पॉजिटिव प्रैक्टिकल बेस्ड एस्ट्रोलॉजी आप अगर करोगे, ऑटोमेटिकली पीपल विल टॉक अबाउट यू, ठीक है. एंड द मोर पीपल टॉक अबाउट यू, द मोर पीपल विल कम टू यू and your income will also increase. 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी करोगे, आपने कभी कितना % एस्ट्रोलॉजर्स को एकदम अमीर बनते हुए देखा है? There are hardly 2 to 3% astrologers who are really rich. Okay, why is that? सिर्फ 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी करोगे, यू आर गोइंग टू अर्न ओनली अकॉर्डिंग टू 2nd हाउस. 2nd हाउस इज व्हाट? योर ब्रेड एंड बटर इनकम. Am I making sense? You are not going to make huge money if you still, keep doing 8th house astrology. Okay?
So remember this point. सबसे पहला step to get into practical positive astrology is you have to understand every planet positively. That is the first step. आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा कि एवरी प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट्स आपके लाइफ में देता है, दे सकता है। ये सबसे पहले बिलीफ आप लोगों का होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? टाइप इन ए इन द चैट बॉक्स, ए फॉर एग्री। अगर आपके बिलीफ सिस्टम में ही बेसिक बिलीफ अगर होगा कि नहीं कुछ प्लैनेट्स आर मेलिफिक, बैड, then you can never become a positive practical astrologer. फर्स्ट बिलीफ आपके अंदर होना चाहिए कि हर एक प्लैनेट इज देयर टू हेल्प यू। एवरी प्लैनेट इज देयर टू गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। Okay, that is the first step to start becoming a ninth house astrologer. All right. For example, Mars, right? मैं पहले सेशन से ही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मार्स इज नॉट एंगर, राइट? लेकिन एक कॉमन बिलीफ क्या है सब जगह पे? मार्स इज एंगर, राइट? मार्स है तो एकदम गुस्से वाला आदमी रहेगा, एंड दिस एंड दैट, एंड बुरा रहेगा, एंड ऑल ऑफ दैट। इट इज नॉट लाइक दैट। मार्स इज व्हाट? एक्शन टेकिंग। मार्स इज व्हाट? अग्रेशन। मार्स इज व्हाट? quick decisions and all of that. अगर आप शनि को बुरा बोल रहे हो तो समवेयर यू आर प्रोग्रामिंग पीपल की मेहनत एक बुरी चीज है। यस और नो? दैट इज व्हाट यू आर प्रोग्रामिंग पीपल। मेहनत बुरी है, राइट? पेशेंस बुरी चीज है। अगर आप शनि को बुरा बोल रहे हो, मेलेफिक बोल रहे हो तो, और ये सबसे बड़ा अधर्म है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ लोग डेफिनेटली कर रहे हैं, ठीक है? केतु को पॉजिटिवली समझाना आना चाहिए, राहु को पॉजिटिवली समझाना आना चाहिए। वो और वो आप कब समझाओगे पॉजिटिवली? जब आप खुद बिलीव करोगे कि ये सारे प्लैनेट्स आर देयर टू हेल्प अस, विच इज द ट्रूथ, विच इज द फैक्ट। Okay? सो कौन से हाउस का एस्ट्रोलॉजर बनना पसंद करोगे? 8th हाउस के 9th हाउस? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नाइन्थ हाउस, ओके, वेरी गुड। क्या बात। कुछ स्टेप्स है जो मैंने बनाई हुए, आप लिख लो। ओके, स्टेप नंबर 1 मैंने पहले भी बताई है, लेकिन यही चीज मैं अभी बार बार बताऊंगा आप लोगों को। स्टेप नंबर 1, प्लैनेट्स को मास्टर करो और हाउसेस को मास्टर करो। सॉरी, प्लैनेट्स को मास्टर करो और दशास को मास्टर करो। दैट इज स्टेप 1। ओके, प्लैनेट्स एंड दशास। अगर ये स्टेप 1 को आपने मास्टर कर लिया तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग द राइट एक्शन एट द राइट टाइम। RART, ठीक है? प्लैनेट्स को मास्टर करो और टाइम को मास्टर करो, मतलब दशास को मास्टर करो, तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग द राइट एक्शन एट द राइट टाइम। ओके, लेट अस टेक अ क्विक एग्जांपल फॉर दिस। ओके, आप लोग अपना सालसा कॉस्मिक टाइम गाइड ऐप ओपन करो एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट इज योर प्राण दशा दैट इज गोइंग ऑन करेंटली।
The Prandasha means which one will it be? Whatever that your app is showing you at the start. Pura. नहीं, just the highlighted part. It is showing you ना timer और उसके ऊपर एक planet लिखा होगा. That planet. That is a Pran Dasha. That is the current phase you are in. Okay. For example, I am currently in the moon phase. Right? So what is the right action at this time? Maybe call with my mother. Right? That is the right action at the right time. And by the way, let me be absolutely just a moment. Let me actually show you how astrology can really be mind blowing. Okay. Can you see my call log right now? Is it clear? Can you see 6:52 p.m. and call to mummy? The second call. I don't know how much clear it is. 6:52 p.m. Right, just before we started this session. Okay, my moon dasha was going on. Okay. And I actually ended up talking to my mother. Right. And I also know in my mind that I have to take this action right now. I should not ignore this. Right? कभी कभी होता है ना, अरे माँ अभी मत कॉल करो, आई एम बिजी राइट नाउ एंड दिस एंड दैट, बट आई न्यू कि मून चालू है, माँ का फोन आया है, राइट? This is the right action at the right time. I have to talk to her right now. I should be talking to her right. Understood? Right. Sanskar is also in the moon phase, right? Moon is all about emotions. And so you should be drinking water, right? That is the right action to take at right this particular time. Right. और उस ऐप में आपको दिखेगा कि मतलब मून मतलब क्या है एग्जैक्टली, सब कुछ दिखेगा. Land, home, mother, sensitivity, water, and all of that. I hope you all have updated the app also. Right? बीच में मैंने एक मैसेज भेजा था सबको कि this is the right thing to do right now. Okay. Rajshekhar ji, sun is going on. So this is the right time to become visible. Or maybe, send a dominating message to the family or maybe relatives or maybe whatever the situation is, right? You know that this is the right time to do this particular thing. Diksha ji is in Mercury phase, right? So this is the right time to do some maybe financial calculations or maybe think about your business or plan for it, prepare for it, strategize for it. वो सब ऐप में लिखा हुआ है, वो प्लैनेट के जस्ट ऊपर सारी चीजें लिखी हुई है. What action you should be taking, right? Right. सब लिखा हुआ है. Alka ji is in Jupiter phase, right? Amita ji is in Ketu phase, right? Right. Okay. So that is step number 1. You know exactly what action is to be taken at what particular given point of time. Amita ji, Ketu, positive and negative, I don't know. Amita ji should not be eating anything right now. खाई जा रही है कुछ तो. ठीक है. Right? Ketu time is the fasting time. Right? Okay. So वो सब आपको दिखेगा उस ऐप में. And that is why I created the app. I did not create the app to start, blindly making money or something like that. There is big thought process behind that, creation of that app. Right? I've sent the link again of the app for those who have not, installed it. And you will actually see it relating with your life. Okay? Those phases will actually relate with your life. मतलब जैसे कि मेरा अभी मून टाइम में ही माँ का फोन आया.
It will actually relate. You will actually see the connection. Okay? So that is step number 1. Right action at the right time. Okay? और right action at the right time लेने के लिए कौन सी 2 चीजें समझनी जरूरी है? Planets and dashas. Okay? Second step. आप प्लैनेट्स तो समझो और बेटर तरीके से समझना, दशास को समझना और बेटर तरीके से समझना, लेकिन उसके साथ साथ यू हैव टू आल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउसेस. ठीक है? When you know planets, dashas and houses, अभी आपको क्या मालूम है? You can take the right action at this particular time for a right situation. मतलब क्या? आप you can start taking right action at the right situation. इसका मतलब क्या? Step 2 means you are someone who can take right decision at the right time. Not only right action, now you have upgraded yourself. Now you have started taking right decisions at the right time. पहला स्टेप क्या था? राइट एक्शन एट द राइट टाइम लेना सीखना है. सेकेंड एक्शन क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है? राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. ओके, एग्जाम्पल बताइए. example, I'll take my example only. Moon. Currently my moon phase is going on, right? And if you know houses also, I know my moon is in the 5th house, correct? And 5th house is a house of my first child, right? So what is the right decision to take right now? Probably I should send an emotional message to her at this particular time. This is what the planets want me to do. सर ये Understood? एस्पेक्ट में भी माना जाएगा ना? हाँ हाँ, मून का तो सर एस्पेक्ट 11th हाउस में भी आता है. तो सर आप इमोशनल नेटवर्किंग कनेक्शन बना रहे हो अभी अभी. हाँ, या करेक्ट. वेरी गुड संस्कार. So that is the right decision to take at the right. So you become a better human now, right? If you understand all of these things. The situation बनी है, एक नेटवर्क का situation बना है, and I'm conveying my message to you in a very emotional way, right? Step number 3. You should know planets very deeply, houses very deeply, dashas and transits both very deeply, and you should know rashis also. अभी राशि जब आप समझ जाओगे, अभी आपको मालूम है कौन सा डिसीजन लेना है, and at the same time you also know what is your expectation of the outcome. I will take the same example. Okay, in my 5th house, I have 7, 8, 9, 10, 11th. 11th Rashi is what I have in my 5th house. I have taken the decision to send an emotional message to my daughter. Okay, so I send that message. Then there is an expectation also. What is an emotional, what is a typical expectation क्या होगा? आप अगर अपने डॉटर को एक इमोशनल मैसेज भेज रहे हो,
typical expectation क्या होगा कि she will also respond back in a very emotional way and I love you too वगैरह सब होगा. That is a typical expectation. लेकिन I know that I have to keep 11th राशि expectations. Yes or no? 11th rashi expectation is what? Maybe the response will be delayed. Yes or no? Right? Maybe the response can be cold also. Saturn is a cold planet. When I know what to expect, right? फिर expectation का भंग होने का chances are very less. And that is where I am creating, write this down. Step number 3 is all about right experience at the right time. So what am I supposed to experience right now? Just sending that emotional message and not expecting anything back or expecting a cold response back. I am setting the right experience at the right. Am I making sense to everyone? इसी में अगर ट्रांजिट्स भी मालूम रहेगा तो यू ऑल्सो नो कि उस राशि में अभी कौन सा प्लैनेट है, वो मॉडिफिकेशन कैसे होगा, क्या होगा. यू ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आल्सो. These 3 steps you have to master as an astrologer. What is the first step? RART. Everybody type in the chat box RART. That is the first step. Right action, right time. RART. Very good. What is the second step? RDRT. Right decision at the right time. That is the second step. First step is RART. Second step is RDRT. And then comes the third step. That is RERT. Right experience at the right. This is a very unique framework that we have created, me and your Guruma, Dr. Vidya. You will not find this framework anywhere, but this is the highest level framework which you can use to apply astrology in your real life. Okay. RART, RDRT, and RERT. सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हाँ. I will just open for Q&A only. Just a moment. ठीक है. Have everybody noted down the 3 steps? Yes. Okay. अभी अपने सालसा कॉस्मिक टाइम गाइड ऐप में there is a learning center also which is going to get opened. Okay. Learning center में you will see our astrology course. You don't have to pay for it again, but you will see our course in this format. Okay, not in the old 6 level format. ये 3 जो steps है उसी में 6 levels आ गए. Understood? Right? So in that you will see a course in RART, RDRT and RERT format. Okay? Content will also be modified to suit that context. You will learn everything there. Has everybody understood those? Yes? Yes. Okay. Any questions anybody has, you are free to ask. Go ahead, Sanskar.
सर जैसे आपने बोला कि एक्सपेक्टेशन मेरे को कोल्ड रखनी चाहिए, पर सर एट द लास्ट तो वो एक्शन ही पे आ जाएगी चीजें। तो मून है तो मतलब इमोशनल रिस्पॉन्स सामने से भी आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। जी। वो जब रिस्पॉन्ड करेगी, she is going to respond from her own chart and her own dashas and her own right. गॉट इट सर, गॉट इट। Understood na? यस सर। But maybe people will not allow her to respond also, or maybe there will be a delayed response. हो सकता है 4 सालों के बाद response आएगा, we never know. जी सर, जी सर, जी सर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे खुद के लिए एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दे रहा हूँ। जी। Understood? जी सर, थैंक यू सर। Yeah. Anybody else has any other question? सर इसी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जी। आपने फोन किया बेटी को, वहां से रिस्पांस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आप कह रहे हैं कि डिले भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है, तो इससे Correct. क्या फर्क पड़ेगा सर? मतलब आप मेरा क्या ex- कम करना चाह रहे हैं? मेरा एक्सपेक्टेशन मैंने सेट कर लिया ना, ओके ओके ओके। राइट? तो अगर कुछ ऐसा बुरा वाला भी रिस्पॉन्स आता है या रिस्पॉन्स नहीं भी आता है, मैं मेरा टाइम और एनर्जी रोने में, फ्रस्ट्रेट होने में, इरिटेट होने में, गुस्सा होने में मैं बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। तो आपने अपना एक्सपेक्टेशन पहले ही कम कर सब लिया, कर दिया। तो उसके न फुलफिलमेंट का कोई एंजाइटी या प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? Correct. तो अल्टीमेटली मेरे हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा पॉजिटिवली। अंडरस्टूड? मेरे टाइम मैनेजमेंट पे इफेक्ट होगा, अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होगा, बिल्कुल। अल्टीमेटली पैसों पे इफेक्ट होगा, रिलेशनशिप्स पे। So everything is connected. It's a like huge connection. Understood? सर अल्टीमेटली मतलब वो सामने वाले की भी दशा के हिसाब से वो अपना एक्शन लेगा, इसलिए हमें Correct. अपना एक्सपेक्टेशन ऐसा हमारे राशि के हिसाब से बना के चलनी है। Correct. यस Very सर, true. गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू सर। सर Understood? आपने ये एक्सपेक्टेशन आपकी 11th राशि थी इसलिए बनाया ना? Correct. अब जैसे दूसरे की अगर मान लीजिए 10th राशि है तो उसके अगर अकॉर्डिंग दूसरे उसका। की समझ लो फिफ्थ राशि होती, ठीक सर। हाँ तो फिफ्थ अगेन। राशि की सन की राशि हो गई, हाँ तो उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होनी चाहिए। बिल्कुल। Right? It will be regarding that. And then that will also define your actions also. You will get more clarity on your actions also. कि अगर response भेजा है आपने, इमोशनल भेजा है, कुछ मैसेज वगैरह भेजा है, what should be your expectation? Expectation, आपका expectation should be like you should get treated like a king. या Be your expectation, right? तुरंत मैसेज आना चाहिए. That बिल्कुल। should be an expectation. कि पिताश्री आपने मुझे कॉल किया था, हाँ सबसे पहले तो आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, एंड दिस एंड दैट, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू नो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर। यस ओके सर, गॉट। अंडरस्टूड? सो रिमेंबर, RART, DRT, RERT, right? These three things very very important. Anybody else has any other questions? ये अपना सालसा कॉस्मिक टाइम गाइड ऐप को डाउनलोड करना इज पार्ट ऑफ योर फर्स्ट स्टेप, RART। ठीक है? और जैसे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में डीपर जाओगे, यू कैन कम टू DRT ऑल्सो एंड यू कैन कम टू RERT ऑल्सो। ठीक है? सर तो वो जैसे आपने कंसल्टेशन देने का बताया था, तो उसके लिए एस्ट्रो सालसा प्रो की मतलब फिर अब ये वाला ऐप यूज करना रहेगा? एस्ट्रो सालसा प्रो का जो इंटेलिजेंस है ना, वो जी पूरा सर। ये ऐप में नहीं आ पाएगा, जी। लेकिन ये ऐप के थ्रू यू विल गेट मोड ऑफ प्लैनेट्स, जी। यू विल गेट टू सी द दशास। लेकिन अपना प्रो में कैसे दशा का एनालिसिस भी हमें पढ़ने को मिलता है ना,
वो ओके यहाँ सर। पे नहीं मिलेगा। तो दिस ऐप विल बी यूजफुल फॉर इमीडिएट कंसल्टेशन, सामने सामने कोई बैठा है, राइट कुछ तो यू वांट टू एनालाइज देम, या फिर हायरिंग डिसीजंस आप ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, राइट? सो दैट वे यू विल बी एबल टू यूज दिस, राइट? सो बेसिकली इफ समवन इज लाइक आप सिर्फ 30 मिनट्स आपको किसी के साथ बात करना है या 15 मिनट बात करना है, देन यूज दिस ऐप, राइट? लेकिन जब आपको किसी के साथ 2 घंटा, और उसने फीस भी अच्छी दे के रखी हुई है आपको, 1.5 घंटा 2 घंटा 10,000 आप चार्ज कर रहे हो, 15,000 चार्ज कर रहे हो, देन यू कैन यूज अवर एस्ट्रो सहसा प्रो आल्सो। थैंक यू सर। अभी आएगा, 2-3 दिन में वो फीचर आ जाएगा, मैं सबको डिक्लेयर कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट, राइट? चलिए, so let me know in the chat box what is your biggest takeaway, आप aha moment from today's session, कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी? भावना जी already appreciated, I really appreciate that. Appreciate करो, आपका जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? Right, so go ahead and write down a couple of statements. What was your aha moment in today's session? And then we will go ahead and close today's session. RART, RADRT, RERT. Okay, very well. Correct. Positive way of astrology is very important. 8th house astrology is different, 9th house astrology is different. Very good framework. Thank you, Kajal ji. Yeah. Okay. So while closing, I just want to let everybody know I am really looking forward for your help in promoting this app. Okay, and even in a little bit paid way is also fine. Okay, so if you have any ideas to promote this app, right, just send me a message. Get in touch with me. Maybe earning opportunities for you also. But we really need to get this app to many people at the same time, right? तो अगर आपके पास कोई ग्रुप है 50 लोगों का, 100 लोगों का, you can arrange a session of us. We will come there. Okay, इंडिया में कहीं पे भी होने दो, we'll come there. Any which ways, we love to travel. Okay, so we'll come there and we'll take that session there. Or you have any other way, you have an idea, you can get in touch, and even if it is a kind of a way to share revenue also, that is also fine. Okay, but get in touch so that we can take all of this technology and all of this knowledge to a lot of people. Because याद रखना अपना मिशन यही है, राइट? 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी को वहां से निकाल कर 9th हाउस में बिठाना, राइट? एंड ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? आसान नहीं होने वाला है, राइट? 8th हाउस एस्ट्रोलॉजर्स चिल्लाएंगे, चीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे, राइट? बट हमें दिखाना पड़ेगा लोगों को कि देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ गाइडिंग पीपल, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ helping people a lot. All right? Okay. So thank you so much for being here. Take care. Pranam, namaste, and Radhe Radhe, everybody. Thank you. थैंक यू सर, नमस्कार। Namaste. थैंक यू सर।